Hello everyone. Today we'll be starting lecture 1 of paper 3, Economics and Business Environment. So lecture 1 will cover basics of demand and supply. That is, what is demand, what is supply, what is law of demand, what is law of supply, and also market equilibrium. So let's start. Before starting chapter 1, we'll first have a quick look of what economic include in economic and business environment. In economics, we'll study basics of demand and supply and different forms of market competition, national income accounting and its related concepts, very basic concepts of national income, Indian Union budget, detailed understanding of what Union budget is in Indian economic scenario, Indian financial markets, and Indian economy. That's it for economics of economic and business environment, and it covers only 25 marks. So with this ratio of 25 marks, we should understand the level of understanding we should have of these five topics, right? So, understanding of these five concepts should be very clear, not very detailed, but more practical. Now, what we'll study in this video, demand and supply, as I have earlier said, law of demand and supply, individual market, individual and market demand, equilibrium price, and market equilibrium. How we'll arrive at market equilibrium depending upon the demand and supply forces. So first, before understanding of these basic concepts of demand and supply, we should first understand why we study economics. This is the basic question. So, economics is studied to understand the economic problem and more importantly to deal with economic problem. Economic problem क्या है? Scarcity of resources and unlimited wants. As we all know, our wants are unlimited, but the resources which is used to satisfy wants is very limited. And therefore, we have to make choices. Choices for best possible allocation of resources in order to maximize our satisfaction. So maximization of satisfaction leads to decision making, and for decision making, we have to understand the economic problem. We have to understand economics. अब हम आते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे. तो सबसे पहले डिमांड. डिमांड का क्या मतलब है? सबसे पहले हम डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं. डेफिनेशन सेज it's a consumer's desire to purchase goods or services and his willingness to pay price for it. So there are two ingredients in demand. Firstly, a consumer should desire a particular goods and service, and if he desires, he should also willing to pay price for it. So a demand consists of two things: consumer's desire and consumer's willingness to pay price. If desire is there but he is not willing to pay price, then the desire will never convert into demand and will not be included in demand. Similarly, if the person doesn't needs a particular goods, even if he has price, if he has money for it, then also it will not convert into demand. Therefore, presence of these both ingredients is necessary to define demand. Demand can be individual, demand can be market. So sum of individual demand will be a market demand. It is very clear from the name. अब हम आते हैं determinants of demand पे. चार basic determinants of demand है. There are number of determinants, but हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिर्फ चार basic determinants जो कि है price of commodity, price of related commodity, level of income and expected change in price. सो प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिस कमोडिटी की हम डिमांड डिटरमाइन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस उस पर डिपेंड करेगा किसी भी कंज्यूमर की विलिंगनेस एंड डिजायर. फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, अगर कोई कमोडिटी रिलेटेड है, रिलेटेड हो सकती है, इधर सब्सटीट्यूट गुड हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है. तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, देन एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वाई की डिमांड भी इंक्रीज होगी, just because both are used together.
एंड सब्स्टिट्यूट के केस में उल्टा होगा, अगर एक्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वाई की डिक्रीज होगी, बिकॉज गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेड। लेवल ऑफ इनकम, कंज्यूमर्स की डिमांड उसके लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियस है। Unexpected change in price. So, present demand for a particular commodity can also be affected by its expectations of change in price in future, which we'll understand later in this video. So, हम demand function को define करेंगे. Demand of commodity X is function of price of commodity X, price of related commodity Y, income of consumer, and T stands for expected change in price. That is called demand function. अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड हम सबने पढ़ा होगा। हमें इतना याद है कि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। एंड प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है। सो पहले हम आते हैं इकोनॉमिक डेफिनेशन पे। इट इज डिफाइंड एज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। We'll come to this other things being equal later. If price of the commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if the price of commodity rises, quantity demanded of it will decline. As simple as that. Law of demand is very simple. It clearly depicts an inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. ये हम लोग हैं कंज्यूमर, जो कि खुश हो रहा है अगर किसी कमोडिटी का प्राइस गिरा है, बिकॉज अगर प्राइस कम होता है तो उसकी इनकम उस पर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बढ़ जाती है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है अगर प्राइस बढ़ जाता है तो। लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने पढ़ा, फंक्शनल रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, प्रोवाइडेड दैट दीज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पर assumptions हैं लॉ ऑफ डिमांड के जो अब अभी हम पढ़ेंगे। एंड price of commodity is a most critical factor affecting demand. So demand function can solely be described as demand of commodity X is function of price of commodity X. लॉ ऑफ डिमांड को हम देखते हैं डिमांड शेड्यूल के फॉर्म में। यहाँ हमने बहुत बेसिक सा डिमांड शेड्यूल बनाया हुआ है जिससे हम लॉ ऑफ डिमांड को समझेंगे। यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स है इन यूनिट। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ था, उसका क्वांटिटी डिमांडेड 6000 यूनिट्स था। वो 10 से 20 हुआ तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, कम हुआ, 5000 यूनिट्स। एंड सिमिलरली ये जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती गई। 60 रुपीज़ पे क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 1000 यूनिट्स रह गई। तो ये पूरा डिमांड शेड्यूल डिपिक्ट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम अब पढ़ेंगे डिमांड कर्व के फॉर्म में। सेम डिमांड कर्व है एट द रुपी, इसमें एक्स एक्सिस में प्राइस ऑफ कमोडिटी है, वाई एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड है। 10 रुपये पे 6000 यूनिट्स, 20 रुपये पे 5000 यूनिट्स का डिमांड है, 30 रुपये पे 4000 यूनिट्स का डिमांड है। एंड सिमिलरली जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड गिरता जा रहा है, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन price, quantity demanded is falling, and therefore demand curve is downward sloping, subject to the condition that other things which we assume as constant. अब हम आते हैं actually what these other things are. Other things जैसा कि मैंने बताया, these are the assumptions of law of demand. तो हम इस assumptions को एक एक करके समझेंगे क्या है। सबसे पहले हमने अज्यूम किया लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करने के लिए सारे assumptions नेसेसरी हैं। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज जैसा कि मैंने बताया या सब्सटीट्यूट गुड्स हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं। तो रिलेटेड कमोडिटी का अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो प्राइस ऑफ जिस कमोडिटी का हम डिमांड लॉ ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे हैं वो इम्पैक्ट, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इम्पैक्ट हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। तो सपोज एक्स और वाई रिलेटेड कमोडिटी है और सब्सटीट्यूट्स हैं।
उनका जो रिलेशन है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो अगर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी वाई विल डिक्रीज, एंड देयरफॉर the consumers will start substituting commodity Y with commodity X. Therefore, अगर commodity X का प्राइस नहीं चेंज हो रहा है तो भी commodity X का क्वांटिटी इंक्रीज हो सकता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो सकता है। तो उस सिनेरियो में लॉ ऑफ डिमांड नहीं ऑपरेट करेगा। सो हमने इसको अजम्पशन किया है यहाँ पर कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड अजम्पशन है इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो सकता है। सो देयरफॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। थर्ड चीज हमने अज्यूम की कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और कस्टम्स, हैबिट, फैशन ट्रेंड्स जो कंज्यूमर्स के होते हैं वो कांस्टेंट है। बिकॉज अगर प्राइस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है दैट डिपेंड्स, बट कंज्यूमर्स के अगर टेस्ट प्रेफरेंसेस या कोई फैशन ट्रेंड चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो सकती है। वो किसी भी प्रोडक्ट का लेस क्वांटिटी या मोर क्वांटिटी डिमांड कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। तो हमने अज्यूम किया है टेस्ट प्रेफरेंसेस, कस्टम्स, हैबिट्स, फैशन ट्रेंड्स ये सब कांस्टेंट रहेंगे। अनदर एक्सपेक्ट Another assumption is no expectation regarding future change in price. Friends, अगर consumers expectations बनाते हैं किसी भी commodity के प्राइस की चेंज होने की इन फ्यूचर में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड का एग्जाम्पल लें तो आज के डेट में अगर कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा इन फ्यूचर, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आज वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर में बी फर्दर राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। सिमिलरली साइज एंड चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो सकती है कमोडिटी की। सिमिलरली अगर कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ कमोडिटी भी इंक्रीज होगा इवन इफ उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ है। और सिमिलरली गवर्नमेंट पॉलिसी एंड वेदर कंडीशंस का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वूलन क्लॉथ्स हैं तो विंटर्स आ रहा है तो वूलन क्लॉथ्स का डिमांड इंक्रीज होगा इवन इफ उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर कुछ किसी कमोडिटी पे टैक्सेस कम हो रहा है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आने वाली है जिससे उसकी स्कैर्सिटी हो जाएगी, देन ऑल्सो उसका प्राइस चेंज हो सकता है, क्वांटिटी चेंज हो सकती है रेस्पेक्टिव चेंज इन प्राइस। एंड देयरफॉर these are the things which needs to be assumed as constant for law of demand. अब हम आते हैं एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। सो लॉ ऑफ डिमांड के बेसिकली 5 एक्सेप्शंस है। सबसे पहला एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स और स्पेक्यूलेशंस, जैसा कि मैंने अभी आपको गोल्ड के एग्जांपल देके समझाया कि अगर किसी कमोडिटी का एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस है तो प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड इम्पैक्ट करेगा, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं ऑपरेट करेगा। फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन है गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। सो गिफन इज बेसिकली नेम्ड आफ्टर एक नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गिफन। गिफन गुड्स का बेसिकली मतलब होता है इंफीरियर गुड्स और वेरी बेसिक कमोडिटी गुड। सो अगर कोई कमोडिटी को हम गिफन गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं, सो इवन इफ उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट, उसका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बेसिक और इंफीरियर कमोडिटी है। जैसे ही उसका प्राइस रिड्यूस होगा इनकम इफेक्ट आएगा, मतलब कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं कुछ खरीदने के लिए तो वो और दूसरी कमोडिटी पे जाएंगे, मोर हायर क्लास कमोडिटी। और सिमिलर इज द केस फॉर इंफीरियर गुड्स। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पशन पे जो है लग्जरी आर्टिकल्स, या उसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स विद स्नॉब अपील। तो ये आर्टिकल्स जनरली कंज्यूमर खरीदते हैं शो ऑफ करने के लिए, सोसाइटी में एक प्रेस्टीज के लिए, एक लग्जरी के लिए। सो जो कंज्यूमर्स इस इंटेंशन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको प्राइस इम्पैक्ट नहीं करेगा। प्राइस कितना भी हो, इवन इफ प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस ज़्यादा है, दैट विल ऐड टू ब्रांड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट and therefore the quantity demanded will not affect. अब हम आते हैं फोर्थ एग्जाम्पशन पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
सो अगर कोई दो गुड कॉम्प्लीमेंट्री है एंड एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, और इवन इफ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट कर सकती है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है, वाई की प्राइसेस चेंज हो रहा है, तो एक्स का डिमांड भी चेंज हो सकता है, बिकॉज एक्स और वाई दोनों साथ में यूज करने हैं, राइट। एंड लास्ट इज कंज्यूमर बायस और इल्यूजन और इग्नोरेंस। सो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अगर किसी कंज्यूमर के मन में कोई बायस है कि नहीं, मुझे तो यही खरीदना है, मुझे तो यही पहनना है, मुझे तो यही खाना है, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं ऑपरेट करेगा। कंज्यूमर्स अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीद सकता है, इवन इफ उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर इल्यूजन है, इग्नोरेंस है, कंज्यूमर के दिमाग में कुछ भी मिसकंसेप्शन है या कोई इल्यूजन है किसी प्रोडक्ट को लेके, या इग्नोरेंस है, उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। So this was all about demand and law of demand, and what are the assumptions, that is other things being constant in case of law of demand. अब हम आते हैं सप्लाई पे। तो सप्लाई की पहले इकोनॉमिक डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में सप्लाई को डिफाइन किया जाता है क्वांटिटीज ऑफ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर prepared to offer for sale at a set of prices over a period of time. So this over a period of time is very important in case of supply. सप्लाई के केस में ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, और अगर हम सिंगल इंडिविजुअल सप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक प्रोड्यूसर, अगर हम मार्केट सप्लाई समझ रहे हैं तो ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, the quantity of commodity which the producer is ready to sell at a price over a period of time. एक पर्टिकुलर प्राइस पे अ प्रोड्यूसर कितना कमोडिटी विल है, चाह रहा है बेचना, वही सप्लाई डिटरमाइन करता है। एंड इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई और स्टॉक दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इवन if प्रोड्यूसर ने गुड प्रोड्यूस कर लिया है, उसका स्टॉक क्रिएट कर लिया है, तब भी इट इज पॉसिबल दैट इट at particular price or at particular period of time he is not willing to sell, and he is still waiting for price to increase. So therefore, in order to ensure profit maximization or for any other reason, the stock can be kept and cannot be converted into supply as far as this producer is ready to sell. Therefore, supply वो गुड्स और सर्विस है जो प्रोड्यूसर सेल करने के लिए तैयार है एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे, वैसे ही सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जैसे लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम रेंट बोलते हैं, इनपुट्स। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस डिटरमाइन करते हैं उसका सप्लाई। तो प्रोड्यूसर्स का willingness to sell or willingness to supply depends upon the cost of factors of production. सेकेंड डिटर्मिनेंट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर किसी भी प्रोडक्ट गुड को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे और मोर एफिशिएंटली, एंड देयरफॉर सप्लाई कैन डिपेंड अपॉन चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर बहुत एफिशिएंसी से प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस नीचे आएगा एंड क्वांटिटी सप्लाई कैन इंक्रीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि हमने पढ़ा सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से भी किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज और काइंड ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। अगर मार्केट में नए एंट्रेंट्स आ गए हैं तो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगा, मार्केट सप्लाई। सो सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। इन तीनों को हम मेन डिटर्मिनेंट मानते हैं, रेस्ट आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। तो जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, there is inverse relationship between price and quantity demanded. In case of supply, there is positive relationship between quantity and price. How? First, we'll understand the definition. A firm will produce and offer to sell a greater quantities of product or service
at a price of a product or services rises, other things being equal. मतलब अगर किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि हम एज्यूम करते हैं इकोनॉमिक्स में कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन के लिए गुड परचेज करता है और सेलर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रोड्यूस करता है। सो अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा एंड देयरफॉर वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहेगा। Right? The law of supply has a positive relationship between price and quantity supply. Or we can say a direct relationship. Higher the prices, greater the incentive for the producers to produce more and sell more. लॉ ऑफ सप्लाई में भी हमने वर्ड यूज किया अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सो अदर थिंग्स को हम अज्यूम करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे इफ लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑपरेटिंग, जिसमें सबसे पहली चीज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइजेस ऑफ इनपुट्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की तो उस केस में उसका सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई प्राइस पे नहीं डिपेंड कर सकता। हो सकता है अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़्यादा एफिशिएंसी से प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेस कॉस्ट पे लेस टाइम पे, तो उस केस में सप्लाई इंक्रीज होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। तो उस केस में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं ऑपरेट करेगी। सिमिलरली अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है तो इट इज़ पॉसिबल दैट लेसर क्वांटिटी सप्लाई होगी। प्राइजेस ऑफ इनपुट्स के में भी सिमिलर इम्पैक्ट होगा। अगर प्राइजेस ऑफ इनपुट इंक्रीज हुआ उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम होगा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम होगा तो वो कम सप्लाई करने के लिए तैयार होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर influencing the supply and which are considered as constant in case of law of supply. Other factors are law of competition, level of competition क्या है, size of industry क्या है, government policy क्या है। ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिवली एज वेल एज निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को। Thus, law of supply is defined as ceteris paribus. With an increase in price of good, producer is willing to offer more quantity in market for a sale. And second condition is quantity supplied is related to specific time interval over which it is offered. So quantity offered depends upon the time interval. It's not same at all levels of time. And therefore these both ingredients are very important in understanding the law of supply. और ये ceteris paribus जो होता है ये लॉ ऑफ डिमांड एज वेल एज लॉ ऑफ सप्लाई में यूज होता है। इट इज बेसिकली अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स अदर थिंग्स बीइंग सेम और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और हेल्ड कांस्टेंट। तो जैसे कि हमने पढ़ा दोनों लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में कुछ फैक्टर्स हैं जो हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ceteris paribus। अब हम लॉ ऑफ सप्लाई समझेंगे सप्लाई शेड्यूल के फॉर्म में। एट अ प्राइस ऑफ 10 क्वांटिटी डिमांडेड 1000 यूनिट्स था एक्स कमोडिटी का। एट अ प्राइस ऑफ 20 क्वांटिटी डिमांडेड 2000 यूनिट्स हुआ। एट अ प्राइस ऑफ 30 फर्दर इंक्रीज हुआ एंड जैसे 60 हुआ 6000 यूनिट्स हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, which shows a positive relationship between price and quantity demanded. Similar relationship हम स्टडी करेंगे सप्लाई कर्व में। x एक्सिस में प्राइस है, y एक्सिस में क्वांटिटी है। At 10 rupees it was 10,000 units. At 20 rupees it was 2000 units. At 30 it was 3000 units, and it keeps on increasing with increase in price, and which shows that supply curve is always upward sloping as against the demand curve. Demand curve is downward sloping, supply curve is upward sloping because of positive relationship or direct relationship between price and quantity demanded. अब ये ceteris paribus जो वर्ड यूज करते हैं assuming other things being constant,
वो क्या चीज़ें हैं इन केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में। अब हम जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट्स में देखा, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई को इम्पैक्ट करने के लिए, वो ही सारे डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। सो हमने अज्यूम किया there is no change in price of factors of production. So as I have explained earlier also, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, वो किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, और उस केस में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं ऑपरेट करेगा। उस केस में सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल नॉट impacted बाय प्राइस, इट विल बी impacted बाय प्राइस ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेकेंड assumption है there will be no change in technique of production। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है किसी भी कमोडिटी को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उस केस में उसका कॉस्टिंग रिड्यूस हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। तो उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं ऑपरेट करेगा। नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गई मार्केट में, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और वो लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट होगा। देयरफॉर हमने अज्यूम किया नंबर ऑफ फर्म्स भी कांस्टेंट रहेगी। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एंड देयरफॉर सपोज हम बाइसिकल का एग्जांपल लेते हैं, अगर बाइसिकल का रिलेटेड कमोडिटी, हमने एक असेंबलर है जो बाइसिकल असेंबल करता है, और उसका रिलेटेड कमोडिटी सपोज टायर हुआ। सो अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है टायर, टायर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो या टायर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा साइकिल का, एंड देयरफॉर सप्लाई ऑफ अ साइकिल will be impacted by price of a tire and not by the price of cycle itself, and इस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं ऑपरेट करेगा। फिर हम अज्यूम करते हैं देयर नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। सो अगर प्रोड्यूसर के दिमाग में कोई चेंजेस आने वाले हैं, बिजनेस में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है वो फ्यूचर में, तो वो अपनी प्रेजेंट सप्लाई को कर्ब या एक्सपैंड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपेक्टेशंस। उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं ऑपरेट करेगा। एंड लास्ट assumption इज देयर इज नो चेंज इन गोल ऑफ फर्म। तो अगर किसी भी फर्म का गोल, जनरल हम assumption करते हैं इकोनॉमिक्स में that goal of firm is profit maximization, but it can be turnover maximization, it can be for promoting any social cause, तो it can be changed। so उस केस में अगर गोल चेंज होता है तो उसका सप्लाई भी इफेक्ट होगा irrespective of change in price in market, एंड उस केस में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं ऑपरेट करेगा। so these are the assumptions of law of supply। अब हम समझते हैं मार्केट सप्लाई। Because individual supply and market supply there may be a different reactions। so हमने यहाँ पर assume किया एक मार्केट है जिसमें तीन फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी। हमने देखा ये तीनों फर्म्स इंडिविजुअली कैसे रिएक्ट करती हैं एंड मार्केट सप्लाई कैसे चेंज होता है विद द चेंज इन प्राइस। सो एट प्राइस 10, फर्म ए 10,000 यूनिट सप्लाई कर रही थी, फर्म बी 2,000 यूनिट और फर्म सी 2500 यूनिट, और टोटल मार्केट सप्लाई 5,500 यूनिट्स थी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ 10 रुपीज से 50, फर्म ए ने अपना यूनिट सप्लाई इंक्रीज किया 1500 से, 1500 से। फर्म बी ने इंक्रीज किया 3000 यूनिट से, एंड फर्म सी ने सबसे कम रिएक्शन किया 1000 यूनिट से। एंड इन तीनों की जो सप्लाई है वो मिला के बनी मार्केट सप्लाई 11,000 यूनिट्स। सो मार्केट सप्लाई में नेट इम्पैक्ट डिफरेंट आ सकता है एंड इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई में नेट इम्पैक्ट डिफरेंट आ सकता है। मार्केट सप्लाई इज नथिंग बट द सम ऑफ goods supplied by all the firms in that market। अब जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड समझा, लॉ ऑफ सप्लाई समझा, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप में होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये सारे फोर्सेस मिलके मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करते हैं हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम तब रीच होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड। जितना प्रोडक्ट डिमांड हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है,
उस केस में मार्केट इक्विलिब्रियम रीच होता है। जब इक्विलिब्रियम होता है मार्केट में, उस केस में बायर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता है फर्दर गुड्स परचेज करने के लिए, एंड सेलर के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं होता है फर्दर गुड्स सेल करने के लिए। और जब मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो जो उस समय जो प्राइस डिटरमिन होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस इक्विलिब्रियम प्राइस में डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। हम देखते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और कैसे अचीव होता है। सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस हमने देखा कि एट इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम देखेंगे अचीव कैसे होता है। अब सपोज डिमांड एक्सीड सप्लाई, इन केस quantity demanded is more than quantity supplied। इस सिनेरियो में क्या होगा, कंज्यूमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कंज्यूमर्स जितना चाह रहे हैं मार्केट से सप्लाई उतना नहीं मिल रहा है, सो देयर इज डिससेटिस्फैक्शन इन कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरी करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उसका प्राइस इंक्रीज होगा। और इस तरह से जैसे प्राइस इंक्रीज होगा कंज्यूमर्स का क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा और धीरे धीरे इक्विलिब्रियम प्राइस रीच हो जाएगा, जिसमें प्रोड्यूसर उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना कंज्यूमर्स को चाहिए। अब सपोज सप्लाई एक्सीड करती है डिमांड को, उस केस में क्या सिनेरियो है, प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, उतने कंज्यूमर्स है नहीं मार्केट में। तो इस केस में जब सप्लाई एक्सीड करेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस लोअर करेगा ताकि ज़्यादा क्वांटिटी उसकी खरीदी जाए। एंड ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जाएगी तो फिर से इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, जहाँ पे जितना वो सप्लाई कर रहा है उतना ही खरीदा जा रहा है। सो at any price level other than equilibrium there will be shortage or surplus, और equilibrium में exact equal होगा demand and supply। अब हम इसको समझते हैं शेड्यूल के फॉर्म में। it will give more clarity। price per unit of commodity x, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। तो सबसे पहले 10 रुपीज़ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड 12,000 यूनिट्स है और क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ 3,000 यूनिट्स है। तो एक्सेस डिमांड है 9,000 यूनिट का। अब इस एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के पास इंसेंटिव होगा ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, क्योंकि डिमांड तो 9,000 और है, तो वो उतना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सप्लाई जब मार्केट में बढ़ेगी, उस केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा एंड क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। उसके पास ज़्यादा इंसेंटिव है प्रोडक्शन का, जैसे ही सप्लाई बढ़ाएगा और बिकॉज डिमांड ज़्यादा है तो वो प्राइस भी बढ़ाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। जैसे ही 10 रुपए पे 20 रुपए आया, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 11,000 एंड सप्लाइड बढ़ गई 5,000। अभी भी लेकिन एक्सेस डिमांड है, अभी इक्विलिब्रियम रीच हुआ नहीं। एक्सेस डिमांड कितना है, 6,000 यूनिट्स। अब इस एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए फिर प्रोड्यूसर को इंसेंटिव हुआ फर्दर प्रोडक्शन का, उसने प्रोडक्शन बढ़ाया, अब उसकी 7,000 यूनिट्स हुई, प्राइस इंक्रीज हुआ एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई, बट अभी स्टिल देयर इज एक्सेस ऑफ 3,000 यूनिट्स। अब नेक्स्ट में इस एक्सेस को मीट करने के लिए फिर इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया 9,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ 40, बट इस इंक्रीज प्राइस पे कंज्यूमर्स का जो डिमांड है वो कम हो गया, वो हो गया 9,000 यूनिट्स। एंड दिस विल बी द इक्विलिब्रियम इन मार्केट, बिकॉज इसमें सप्लायर्स उतना ही सप्लाई कर रहे हैं जितना कि कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं। अब इसके रिवर्स में अगर हम समझें, सपोज प्राइस जब 60 रुपीज़ था तो क्या था, एक्सेस सप्लाई थी, 13,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था और सिर्फ 5,000 यूनिट्स परचेज हो रहा था। उस केस में क्या हुआ, कंज्यूमर्स के पास, सप्लायर्स के पास इंसेंटिव हुआ प्रोडक्शन रिड्यूस करने का, क्योंकि वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना मार्केट में परचेज हो ही नहीं रहा है। तो ये प्रोडक्शन रिड्यूस किया इन्होंने, प्राइस भी रिड्यूस हुआ 50 to 60, और इस केस में क्या हुआ, कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज हो गई। और ये तब तक होता जाएगा जब तक ये इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता। अब हम देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम कर्व के फॉर्म में। हमने सिमिलर शेड्यूल को, सेम शेड्यूल को कर्व के फॉर्म में डिपिक्ट किया है, जिसमें ब्लू लाइन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बता रही है। देखिए क्वांटिटी डिमांडेड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है
एंड ऑरेंज लाइन आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बता रही है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 40 रुपीज 9,000 यूनिट्स पे, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस 40 रुपीज है जो कि रीच हुआ है इक्वालिटी इन डिमांड एंड सप्लाई से, जब quantity demanded is also 9,000 unit and quantity supplied is also 9,000 unit, equilibrium price is rupees 40. And this is the scenario of market equilibrium, where demand curve is intersects demand supply curve, and there is no incentive for producer to produce more. There is no incentive for consumers to demand more. So thank you so much. This topic is continued in my next video.